Now I will tell you derivation of Ohm's law by drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की मदद से हम आपको बताएंगे डेरिवेशन कैसे ऑब्टेन होता है ओम्स लॉ का. ठीक, इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट derivation and may be asked in the recent board examination. Okay. Suppose a metallic wire of uniform thickness having cross-sectional area A and its length is small l and electric potential difference across the wire is V, which is established by adding with the battery of V potential across the wire, positive and negative. Inside wire, electrons move towards positive potential, ये positive negative, with drift velocity vt, with drift velocity vt. Toward positive. Inside wire, electric field intensity at each point E is equal to V upon L, which is potential gradient. V upon L. L is the length of the wire and V is the potential difference across it. And the force exerting on each electron inside the wire, F is equal to E into capital E, where E is equal to, and in the place of E we can write E upon L. Therefore acceleration of each electron inside the wire toward the positive potential A is equal to F upon M, where M is the mass of electron. EV upon LM. With acceleration EV upon LM, electron moves towards the positive potential along the length of the wire toward the positive potential inside the wire. In the absence of electric potential, the velocity of each electron is thermal velocity, and thermal velocity is a regular velocity and its direction is irregular, its orientation is zigzag. The average of these velocity is zero. That is why the average क्या होगा zero. कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, लेकिन इनका रिजल्टेंट क्या होगा zero. ठीक. And after establishing the electric potential across the wire, the velocity of the wire V1 is equal to thermal velocity and initial velocity U1. Thermal velocity U1 plus A tau 1. What is tau 1? Tau 1 is time of relaxation. And what is time of relaxation? The time taken in two consecutive collisions with the atoms or ions in the path is called time of relaxation. तो आप समझ गए होंगे कि कितना टाइम लगता है, यानी टाइम ऑफ रियलाइजेशन की डेफिनेशन हम बता चुके हैं, यानी आपको फिर एक वीडियो बताएंगे कि टाइम रियलाइजेशन क्या होता है. टाइम टेकन यानी एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स
with the atoms or ions in the path is called time of realization. और टाइम ऑफ रिलेशन का ऑर्डर होता है 10 to the power -14 सेकेंड, 10 to the power -14 सेकेंड। तो u1 क्या है? थर्मल वेलोसिटी है बिफोर, यानी इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल v इज इक्वल टू, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल v, द वेलोसिटी v इज इक्वल टू u1 प्लस a टाउ 1। ये वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। ये टाइम टेकन है इन ऑब्टेनिंग द वेलोसिटी v1। आफ्टर टाइम टाउ 2 द वेलोसिटी इज v2, एंड सो ऑन, देयरफॉर एंड सो ऑन, vn is equal to un plus a tau n। Now the drift velocity, now the drift velocity vd is the average of velocity of the electrons after establishing the potential difference across the wire। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v1 v2 v3। ये टाइम टाउ 1 में, ये टाइम टाउ 2 में, ये टाइम टाउ 3 है, ये टाइम टाउ n में, ठीक, इनके टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी। तो यानी vd इज इक्वल टू हो गया, इन द प्लेस ऑफ v1 वी शैल राइट u1 प्लस a टाउ 1, u2 प्लस a टाउ 2, एंड un प्लस a टाउ n। भाई देखिए ऐसा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n है, तो हमने n टाइम दिया हुआ है, और अपॉन में हमने लिख दिया n। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, u1 u2 u1 एक तरफ लिख लेंगे, और a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ n एक तरफ लिख लेंगे। देखिए u1 ये थर्मल वेलोसिटी है, u1 u2 एंड सो ऑन un, अपॉन में n अलग कर लिया हमने, और a कॉमन हो गया, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n अपॉन में n। देखिए ये तो जीरो होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ थर्मल वेलोसिटी, एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन ओरिएंटेशन होता है इनसाइड फायर वो इरेगुलर होता है। तो जब अपोजिट आ जाएंगे एक दूसरे के, तो रिजल्टेंट जीरो हो ही जाएगा। तो ऐसे बहुत इनका रिजल्टेंट जीरो प्लस ये a, और इन द प्लेस ऑफ दिस वी शैल राइट टाउ। व्हाट इज टाउ? टाउ इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। टाउ क्या है भाई? वेयर टाउ इज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो vd इज इक्वल टू हो गया टाउ, a टाउ, ये vd इज इक्वल टू a। नाउ vd इज इक्वल टू, in the place of a we shall write E कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, अपॉन L m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये टाउ, ये। अच्छा इतना नोट कर लिया? बोलो भाई, इतना नोट कर लीजिए। Vd इज इक्वल टू EV अपॉन Lm टाउ, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बताओ। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया? रफ करें? नोट कर लीजिए, रफ करना है। ये रिलेशन हमने निकाला था, BD इज इक्वल टू EV कैपिटल B अपॉन Lm टाउ, ये रिलेशन निकाला। अब देखिए, we know very well body relation between electric current and drift velocity. I have already
I have already told you about the relation between I and electric current and Vt and drift velocity. I is equal to NEAVT. Since electric current I is equal to NEAVT, where N is the per unit volume number of free electrons. We know very well. एक बार फिर लिख देते हैं, number of free electrons पर यूनिट वॉल्यूम। फिर एक बार लिख देते हैं भाई, इसे जानकारी हो जाए। ए क्रॉस सेक्शन एरिया है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ई एलिमेंट्री चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। अब आप देखिए, आप I is equal to NEAV, in the place of VD we shall write EV upon LM. E capital V your electric potential difference, LM tau, ये रिलेशन है। तो आप ये देखिए, I is equal to आ गया NE square AV upon LM tau, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम रोक लेते हैं, बाकी जो डिवीजन वाला है मल्टीप्लाई में जाएगा अदर साइड में, और जो मल्टीप्लाई में डी के है वो डिवीजन में है। तो इट कैन बी रिटन कैपिटल V इज इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। समझ में आई बात? और इनटू E आई, या टाउ ठीक से बना देते हैं आप, इससे देख लीजिए टाउ। ठीक, टाउ क्या है? टाइम ऑफ रिलेशन। तो LM अपॉन N स्क्वायर ए टाउ इंटू आई V स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए क्या आता है। V is equal to LM upon NE square A tau into I. Since LM and E A tau are constant, since देखिए LM and E A tau are constant, ये तो कांस्टेंट है भाई। जब ये कांस्टेंट है तो कैपिटल भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये क्या है? विच इज ओम्स लॉ, विच इज ओम्स लॉ, यही आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में क्या कहा गया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी फिजिकल स्टेट अगर नहीं चेंज हो रही किसी वायर की, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अक्रॉस द वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग करंट थ्रू द वायर। यही ओम्स लॉ है। ठीक, अब यहाँ देखिए, वेयर रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कह सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो थर्मल भी होता है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैपिटल R इज इक्वल टू LM अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। और किस पे डिपेंड कर रहे हैं? देखिए साफ साफ जाहिर है, कितने टाइम ऑफ रिलैक्सेशन पे डिपेंड करते हैं, लेंथ पे डिपेंड करते हैं, और मास पे भी देखिए डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे भी है। तो आप दिख रहा है ना, तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो इस तरह से दिस वे आई हैव कंप्लीटेड द डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ बाय विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है, दिस में भी आज इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। नोट कर लीजिए।